Mahek, Dhruvi, Drashti. Okay, so how many of us are joined? A very happy Sunday morning, I would say. I know. Sundays थोड़ा अजीब रहता है. Good morning, Jay. Good morning, Uvesh. Good morning. Alright, let's wait for just 5 more minutes. देखते कितने और लोग join होते हैं, and then we'll begin. आगे क्या करते हैं? All right, guys. Good morning, good morning, good morning, good morning. चलो. I'll begin with the writing skill first. Direct मैं prose के साथ start नहीं करूँगी. एक writing skill के साथ start करूँगी. Then we'll move on with prose. Is that okay, Reza? Don't worry about that. Your syllabus, it'll be done. ठीक है? Yes. Thank you, Jay. ठीक है. तो today we'll be practicing pressy writing. Right? Previously we have already done pressy writing. ये साल में नहीं. 11th standard में. Do we guys remember what pressy writing is all about? Pressy writing actually क्या है वो याद है किसी को? 11th standard से 11th में हम लोग ये सब कर चुके हैं. Pressy writing है ना. You guys must have done it. किया है? Uvesh, yes, no? Okay. Hari just raised a hand. रुक जाओ. 1 second. Hold on. Yes, हाँ Hari. मैम किया है वो पैराग्राफ को 1/3 हिस्से में मतलब वो छोटा कर देना होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना? यस, ऐसे ही कुछ है, राइट. बट क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि वो 1/3 में करना होता है कि 3/4 में करना होता है. सो व्हाट वी आर गोना डू इज कि आई विल जस्ट ब्रश अप ऑन द रूल्स नहीं है, मैं सिर्फ तुम लोग को याद दिलाऊंगी कि हम लोगों ने क्या किया था लास्ट ईयर. रेजा आई गेस प्रीटी मच रिमेंबर्स व्हाट वी हैड डन, राइट रेजा? वो लिखा हुआ भी होना चाहिए. ठीक है. सो आई एम श्योर यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन. प्रेसी राइटिंग करके दिख रहा है? ओके. Yes, Hari wants to say something. नहीं, okay, all right. So ऐसे दिखा, thumbs up. Okay, guys. So if I go to talk about, एक second, hold on. ठीक है. Okay. Pressy writing. Pressy meaning we are actually shortening something. It's like summarizing. हम जब summary करते हैं, summarize करते हैं, या we are actually taking something in nutshell. Shorten करते हैं, right? So that is what we call as pressy. Pressy, something in short. Right? What Hari just said is correct. Yeah, you'll be given a very very long passage. बहुत बड़ा passage दिया जाएगा and you need to shorten it. ठीक है? So as the technical definition goes, a précis may be defined as a restatement. ठीक है? कुछ नहीं करना है, जो ideas present किए गए हैं passage में, right? उसी को छोटा करके बताना है. You need to shorten it. Plus you need to pick up the main ideas. हमें पूरे चीज के बारे में नहीं बताना. We need to talk about only the main points. कि भाई what exactly is the passage or the paragraph or whatever is given to you all about. ठीक है? It's just like note writing की note taking, but note taking ये और note taking में फर्क क्या है? ये हम लोग छोटा 3 to 4 लाइन्स में करते हैं. नोट टेकिंग में हम लोग बुलेट फॉर्म में कर रहे हैं, उसको हम पूरा ब्रेकअप करके पॉइंट्स में डाल रहे हैं. ये हम एक्चुअली शॉर्टन कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली शॉर्टनिंग इट. ठीक है. सो वी अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली प्रेसी इज ऑल अबाउट. कुछ नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू शॉर्टन इट. उसको शॉर्टन करना है, छोटा करना है हमें. ठीक है? गॉट इट? ऑलराइट. सो मूविंग ऑन. ओके, राइट. So it is not, guys, देखो there has always been a confusion कि भाई हम जब प्रेसी करते हैं, whenever we are actually attempting the presi, right, it is of 5 marks. Let me tell you that 5 marks का है, right? तो उसमें examiners क्या क्या देखते हैं? One, if you have actually talked about the main ideas, वो क्या करना है, कैसे करना है, I'll just tell you in a while, right? Main ideas क्या क्या है वो तुम लोगों ने include किया है कि नहीं? That's one. 2, इसमें word limitation है. You have word limitation within 50 words, right? 50 words का मतलब है that is about 5 to 6 lines maximum. उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं, right? Minimum 5 lines, maximum you can go to 7 lines. That's it. मैं तो बोलूँ 6 lines में खत्म कर दो. ठीक है? मेन ही आइडियाज हमें प्रेजेंट करना है और कुछ नहीं करना है, right? Only the main ideas.
Okay, so it contains one third, as it is said over here, one third है, 3/4 नहीं है. We always have been confused कि वो 3/4 में आएगा कि 1/3 में आएगा. It is 1/3. Right? When we are talking about 3/4, it goes up to 12 lines. Right? It goes up to 12 lines. But हमें ये सिर्फ 50 words में करना है. And your 50 words will be contained in about 6 lines. उसका half करना है. Right? So it is 1/3. वो दिमाग में रखना 1/3. Your teachers might tell you 3/4. It is not 3/4. It's 1/3. Right? हमारे टीचर्स ऑफ इंग्लिश हमें बताते हुए आए को 3/4 है, 3/4 है, 3/4 है करते हैं. 1/3 है. एक मतलब बहुत छोटा करना है हमें. ठीक है. अब इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड के पैसेज में क्या दिया हुआ है. व्हाट इज एक्चुअली गिवन इन द पैसेज. लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू, राइट, यू नीड टू रीड द पैसेज फर्स्ट. बहुत लंबा चौड़ा होगा. आई गेस 1 पैराग्राफ हाफ अ पेज तक जाएगा. वो हाफ पेज को हमें कंसाइज करना है. ठीक है. वो हाफ पेज को हमें ये छोटे 5-6 लाइन्स में कंसाइज करना है. कंसाइज का मतलब है छोटा करना है. ठीक है. तो फॉर दैट your mind should be very very clear and very active and alert कि भाई to understand passage में क्या दिया हुआ है. Not from that point of view. Guys, keep one thing in mind. ठीक है. Whenever we are reading a piece of writing, right, whenever we are reading a prose piece, make sure you are understanding it. हमें ये नहीं देखना कि उसमें क्या दिया, हमें ये देखना कि तुम्हें क्या समझ में आया है. राइट. ठीक है. एंड देन ट्राई टू मीट अप विद द मीनिंग व्हाट इज गिवन इन द पैसेज. यू आर इम्पोर्टेंट राइट नाउ. योर अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट. तुम लोग को कैसे समझ में आता है, तुम क्या लिखते हो, राइट, उसी के लिए तुम्हें मार्क्स मिलेंगे. गेटिंग माई पॉइंट. नॉट द अदर वे अराउंड कि पैसेज में ये दिया हुआ है, पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग नोशन. ठीक है. तुम्हें क्या पता चला है, बट यू गाइस हैव अंडरस्टूड. ठीक है. एंड उसमें से तुम मीनिंग क्या टेक अवे करते हो. दैट इज द सेकंड पॉइंट. ऑलराइट. थर्ड पॉइंट, हम कंसाइज कैसे कर सकते हैं उसमें. ट्राई नॉट रिपीटिंग. देखो हम जब लिखते हैं ना तो हमारे माइंड वो वर्ड्स या लाइंस को रिपीट करते हैं. रिपीटेटिव वर्ड्स में ट्राई यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. मेरे पैसेज में से पिकअप करो. राइट. उसके एक टेक्निक है, मैं बताती हूँ. अगर तुम लोग के पास कोई भी टाइम ना हो ना समझने के लिए, ठीक है, तो देयर इज अ वेरी वेरी व्हाट टू से अ शॉर्टकट मेथड. सक्सेस है, सक्सेस मंत्र ऑफ माय लाइफ, राइट, एग्जाम्स के लिए. ठीक है. सो व्हाट यू डू इज पैसेज में जो भी दिया हुआ है मेन की लाइंस होंगे. देयर आर समथिंग कॉल्ड लाइक द की वर्ड्स और की लाइंस. राइट. वो की लाइंस को पहले उठाओ. ठीक है. फर्स्ट है, इफ यू डोंट हैव द टाइम टू रीड करना बट समझने के लिए टाइम ना हो तो की लाइंस को उठाना. राइट. की लाइंस जब तुम लोग उठाओगे ना तो मे बी 12 जितना लाइंस उठेंगे. देयर विल बी अबाउट 12 लाइंस. उसको उठाओ, अलग करो. राइट. दिस विल टेक ओनली 3 मिनट्स ऑफ योर टाइम. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूँ ना, दिस विल टेक ओनली 3 मिनट्स. हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. की लाइंस उठा लिए हम लोगों ने. राइट. वंस वी पिक अप दोस की लाइंस, फिर उसमें से देखो आइडिया आ रहा है व्हाट इज द मेन आइडिया. मेन आइडिया वाले लाइंस कौन कौन से हैं. राइट. बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो रिपीटेटिव है. वो रिपीट वाले को एलिमिनेट कर दो. एलिमिनेट व्हाट इज बीइंग रिपीटेड. कोर आइडिया वाले उठाओ. उठेंगे मैम मे बी 4 या 5 लाइंस. उसको उठाओ, जोड़ दो, स्टार्ट जॉइनिंग इट. देयर यू हैव योर प्रेसी. राइट. ठीक है. पीपल से कि यू नीड टू रीड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये करो वो करो वो करो. हमें पता है, हम एग्जाम लिखते हैं. ठीक है. सो वी रन आउट ऑफ टाइम. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू डू इट. ठीक है. सो थर्ड पॉइंट वही बोल रहे हैं, डोंट रिपीट. जो भी लिख रहे हो थोड़ा अलग से लिखना. डोंट रिपीट योरसेल्फ. ठीक है. डोंट मेक द पैराफ्रेज. नाउ व्हाट इज पैराफ्रेजिंग. ठीक है. पैराफ्रेज का मतलब है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं. नहीं 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 नहीं. प्रेसी में क्या करना है, हमें पैसेज का छोटा करना है. वही चीज को सेम डिस्टिंग, सेम मीनिंग, सब सेम होना चाहिए, तो उसको हम छोटा कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली शॉर्टनिंग. वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछ रहे. गेटिंग माय पॉइंट. पैराफ्रेजिंग इज व्हेन वी आर राइटिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज देयर इन द पैसेज. वो नहीं करना है. वी जस्ट नीड टू शॉर्टन इट. पैराफ्रेजिंग करने जाओगे ना तो बात अलग ही पड़ जाएगी और 3 मिनट का 15 मिनट भी तुम लोगों को कम पड़ेगा. ठीक है. डोंट लिस्ट द मेन पॉइंट्स. ओके. मेन पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हो. गाइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोर आइडिया, राइट, एंड
मेन पॉइंट क्या होता है कि हम लोग सिर्फ ओके आपको मेन लगा वो उठा लिया. कोर आइडिया, कोई कोई लाइन्स में ना कोर आइडिया की डिस्क्रिप्शन दी जाती है, वही लाइन्स को हमें उठाना है. ओके यहाँ तक या क्लियर विद किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स गाइस? क्लियर है राइट? कोई डाउट हो तो पूछना, बिकॉज ये दिस इज ऑफ 5 मार्क्स, कैश मार्क्स है. यू एक्चुअली कैन गेट इट. ऐसे ही तुम लोग को करोगे ना तो तुम लोग को मिल जाएगा. ओके ठीक है. ऑलराइट, पढ़ के हमें वो कोर आइडियाज के लाइंस पता चल गए. नाउ इट शुड बी कंटिन्यूअस. हम जब लिख रहे होते हैं तो इट शुड बी एज इन राइट, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं राइट. ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी आइडिया शुड बी कनेक्टेड टू द प्रीवियस वन. इसे बोला गया है कि इट इज अ पीस ऑफ कंटिन्यूअस राइटिंग. एक के बाद एक वो लिंक होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एज सच कि इंट्रोडक्शन उठा लिया, कंक्लूजन उठा लिया, बीच का पता नहीं तुम लोगों को कुछ और कर दिया है. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ईच एंड एवरी लाइन शुड बी connected with the other line. अगर कोई कनेक्शन ना हो that means there is something wrong wherein you know तुम लोगों ने कुछ या तो मिस आउट कर दिया है या कुछ you know confusion create हो गया है. Right? Please do not let that happen. Okay, वो है. फिर what else it is? Right? It has a proper organization of ideas, logical sequencing of points. इससे क्या होगा, देखो हम लोग वो कोर आइडिया को एक के बाद एक लिंक कर रहे हैं. So what happens कि everything is falling into place. So it should have a logical what to say arrangement of ideas. हम जैसे समझ रहे वो उस तरीके से आना चाहिए. Like just like I told you a minute ago. ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, that's it. बीच का कहाँ गया फिर? Right? It should not be as such. And हाँ guys, starting sentence and concluding sentence होना चाहिए, वो रिवर्स में नहीं होना चाहिए. Got it? Introduction should come in the first part, conclusion should come in the last part, middle part should come in the middle. Right? Please do not mix this up. वो 3-part formation सारे writing skills के लिए एक जैसे ही है. It should fall in its systematic pyramid manner. Introduction, body and conclusion. वो प्रेसी के लिए भी मायने रखते हैं. Just like I told you in the essay writing. Okay. Use variety of language as situation demands. अगर लगता है कि भाई you are not able to write that particular बोलते ना line लिख नहीं पा रहे हो from the right from the passage itself, then you can थोड़ा हम twist कर सकते हैं. Twist in the sense you can use synonymous words. वहाँ जो words है तुम्हें पता नहीं चल रहा है, maybe you can use synonymous words, something similar, right? That you can do, but making sure not changing the meaning. Meaning हमें बिल्कुल change नहीं करना है. Right, guys, again I'm telling you, Précis is just shortening it. We are not paraphrasing it. Right? Paraphrase का मतलब है खुद के words में लिखना है, वो नहीं कर रहे. Point number 1. Point number 2. Right? हमें वो meaning change करके अलग तरीके से नहीं लिखना है. Right? You just need to shorten it into 1/3. 1/3 meaning in about 5 to 6 lines within 50 words. Getting my point? ठीक है? So the content what is being demanded should be the same, right? What I am saying is कि अगर तुम लोगों से for example और disparity समझ में नहीं आए, there is a word disparity, right? वो समझ में नहीं आए, तो maybe you can use some same two words as unclear, right? or indifferent. ये सारे synonymous words हैं, right? Sorry, your vocabulary should be good. तुम्हारे दिमाग में जो vocabulary आ रहा है वो अच्छा होना चाहिए. ठीक है, डिस्पैरिटी वो तुम लोग को पता नहीं चले कहाँ यूज करना है तो अनक्लियर यूज कर लो, अनक्लैरिटी यूज कर लो, कोई बात नहीं. मीनिंग रिमेन्स द सेम. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय यूज वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एज द सिचुएशन डिमांड्स. सिचुएशन का मतलब है एज द पैसेज इज डिमांडिंग. ठीक है, फिर राइट, डोंट इंक्लूड एनी कमेंट्स, एक्सप्लेनेशन और एलैबोरेशन. सेम पॉइंट अगेन, खुद का पॉइंट वहां पे डालने की जरूरत नहीं है. हम कोई ऐसे नहीं लिख रहे, जो है जैसा है वैसे उठा के लिख दो, राइट? एंड उसको कुछ भी इलैबोरेट नहीं करना है. भाई इलैबोरेट करने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं होगा एंड वर्ड लिमिट ऑल्सो भी छूट जाएगी हमारी, राइट? वर्ड एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, वहां पे कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं. नो एग्जांपल्स, राइट? कुछ नहीं. जो राइटर का जो भी वॉट एवर इज प्रोवाइडेड इन द पैसेज, जो ओरिजिनल आइडिया है वही चीज को हमें प्रेजेंट करना है, राइट? अगेन एंड अगेन द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, हम जैसे स्टूडेंट्स राइट ओ स्मार्ट होके
लाइक ओवर स्मार्ट हो गया, व्हाट वी डू इज इंस्टेड ऑफ शॉर्टनिंग इट, हम अपना सब खुद लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि वन हमारा जो पर्पस है वो मीट आउट नहीं होता है, दैट इज शॉर्टन करना है। टू पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से बदल जाती है। राइटर का तो साइड में ही हो गया, हम खुद का सब कुछ बोल रहे हैं वहां पे, राइट। सो द एजेंडा टू बी मेट इज नॉट मेट। तो आपके जो 5 मार्क में से 1, 1, 1.5 ये जो मिलती है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ओके, दिस यू आर क्लियर विथ? किसी को कोई डाउट है? यस, नो? ऑलराइट, ओके, note it. Please remember, it is not a creative writing. ऐसे की तरह क्रिएटिव राइटिंग नहीं है। ऐसे इज क्रिएटिव, मतलब हम खुद से लिख सकते हैं। इट इज merely a condensed reproduction of the original writer's ideas. Condensed का मतलब है short, उसको we are just shortening it, we are just summarizing it. ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, बाकी बात सब मेन पॉइंट्स है। ओके, अब लास्ट, राइटिंग अ गुड प्रेसी रिक्वायर्स व्हाट? 5 मार्क मिलने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के पैसेज में ये दिया हुआ है, ये की आइडियाज है उसके, राइट, एंड यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट, राइट, यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस द की आइडियाज इन अ वेरी शॉर्टन्ड मैनर। ठीक है, सो अभी क्लियर विद दिस, ये प्रेसी राइटिंग है क्या? ठीक है, 1/3 में करना है, 5 to 6 लाइन्स में है, विद इन 50 वर्ड्स है, राइट, की आइडियाज को उठा के करना है। गॉट इट? राइट, इट इज नॉट 3/4, लेट मी क्लैरिफाई दैट वंस अगेन, 3/4 नहीं है, 1/3 है। 3/4 करने जाएंगे तो इट इज मोर देन, आई वुड से इट विल गो बियॉन्ड 6 लाइन्स, बियॉन्ड 50 वर्ड्स, हमें उसका 1/3 करना है। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब इसमें से क्वालिटी व्हाट आर वी लर्निंग? एक तो कंप्लीटनेस, और हम इसको शॉर्ट में कर रहे हैं बट इट इज फुल्ली कंप्लीट। एक क्लैरिटी ऑफ आवर आइडियाज बीइंग प्रोड्यूस, मतलब कि हमें वो क्लियर आइडिया है। एंड कंसाइसनेस, कंसाइसनेस का मतलब है वी कैन एक्चुअली शॉर्टन द होल बिग, मे बी अ पेज एंड अ हाफ का पैराग्राफ इनटू दीस फ्यू लाइन्स। ठीक है, अब कंप्लीटनेस का मतलब क्या हुआ? अब प्रेसी शुड कवर द एसेंशियल कंटेंट्स, यानी कि एसेंशियल का मतलब है इंपॉर्टेंट की आइडियाज, राइट, जो की मेंशन्ड है वहां पे, वो हम लोग जो लाइंस लिख रहे हैं उसमें मेंशन्ड, वो उसमें कवर अप हो जाना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट सी चीज या इंपॉर्टेंट फैक्ट शुड नॉट बी ओमिटेड। की आइडियाज उठाते उठाते का मतलब ये नहीं कि बाकी सबको भी छोड़ दे। मेक श्योर वी आर एक्चुअली इंक्लूडिंग एवरीथिंग, राइट, इट इज अप टू यू, तुम लोग उसको छोटा करके कैसे इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, अब क्लैरिटी का मतलब क्या है? राइट, क्लैरिटी इज जो भी हम लोग वहां पर लिख रहे हैं ना, राइट, जो पैसेज ओरिजिनल पैसेज था, राइट, एंड जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, उन दोनों की आइडिया सेम होना चाहिए। दैट मीन वी आर क्लियर विद व्हाट वाज बीइंग सेड इन द ओरिजिनल पैसेज। ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्युइटीज का मतलब है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन व्हाइल रीडिंग, बिकॉज जब हम रीड करते हैं आफ्टर राइटिंग वी ऑलवेज रीड, तो कोई कंफ्यूजन, ओके was this to be written, जैसे नहीं होना चाहिए। एंड रिडंडेंसीज का मतलब है कोई बड़े डिफिकल्ट बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यूज वेरी सिंपल वर्ड्स। चाहो तो तुम लोग यू कैन यूज द सेम वर्ड्स गिवन इन द पैसेज, अगर वो पता नहीं चल रहा है तो यू कैन यूज सिंपलर वर्ड्स, जस्ट लाइक ऐसे सिनोनिमस वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो। बट इम्प्रेस करने के लिए राइट, प्लीज डू नॉट यूज हार्ड वोकैबुलरी जो फिर बाद में तुम लोग को भी पता नहीं चलता है। राइट, बी एज सिंपल एज पॉसिबल, राइट, जितना जो तुम लोग सिंपल रहोगे, जितना आइडिया को तुम लोग ऑन की पे हिट करोगे ना, यू विल गेट एटलीस्ट 2.5, 5 में से एटलीस्ट 2.5, 3.5 मैक्सिमम, मैक्स में बोल रही हूँ। लैंग्वेज में टीचर्स एक्चुअली लुक आउट फॉर कि हम लोग मार्क्स को कहाँ काटे। जैसे तुम्हारे ओसीएम में, अकाउंट्स में, स्टैट्स में, इको में, तुम लोग को यू गेट इट बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द कंटेंट। यहाँ इट इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर ऑन स्पॉट ऑन में नहीं होता ना, टीचर यूं काट देते हैं, 1/4 करके काट देते हैं। यस, बोर्ड्स में 1/4 की कटिंग है, हाफ नहीं है, 1/4। 4 1/4 मतलब 1 मार्क तो ऐसे ही चला जाएगा, राइट। सो मेक श्योर, मिस्टेक्स तो होने वाले हैं हमसे, दैट इज फॉर श्योर, वी आर नॉट परफेक्ट, बट जितना हो सके उतना ट्राई मेकिंग लेस मिस्टेक्स। ठीक है, एंड गाइस
1/4 का जो कटिंग है ना, इट इज अप्लाइड टू ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट? ईच मिस्टेक, राइट, विल कॉस्ट यू 1/4, वो दिमाग में रखना. इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर लैंग्वेजेस. गुजराती इंग्लिश के लिए ही नहीं, बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोर्ड में 1/4 की कटिंग होती है. सो प्लीज बी वेरी श्योर यू मेक लीस्ट अमाउंट ऑफ मिस्टेक. चलो ना, बिकॉज मिस्टेक्स तो होने ही वाले हैं, वो हमको भी पता है. तो जितना हो सके उतना मिनिमम मिस्टेक्स करने की कोशिश करना. ओके. अब कंसाइसेस का मतलब है इट शुड बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए. जैसे क्या वो सही, ब्रीफ का मतलब है छोटा होना चाहिए एंड टू द पॉइंट. हमें कोई वहां पे लबाचा नहीं लिखना. वी डोंट हैव टू बी इलैबोरेट, राइट? जो है जैसा है ऑन पॉइंट में हमें लिखना है, राइट? इट शुड बी अ कोहेरेंट पीस ऑफ राइटिंग प्रेजेंटिंग आर्गुमेंट लॉजिकली. कोहेरेंट, अगेन क्लियर, राइट? आर्गुमेंट का मतलब है व्हाटएवर इज बीइंग सेड इन द पैसेज, उसको विद क्लैरिटी वहां पे आपको प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए. विद दिस इज व्हाट द passage is all about. Mere omission of certain words, phrases, and clauses from the original passage may produce a poor précis. Like if you want, ठीक है, you can pick up the key phrases या key words. मैंने कहा ना, key ideas हम उठा सकते हैं passage में से. Like the shortcut that I told you, key idea वाले लाइन को उठाओ, राइट? उसको देखो कौन सा लाइन किस तरीके से लिंक हो रहा है, स्टार्ट लिंकिंग इट टुगेदर. हो गया तुम्हारा प्रेसी. ये सारे पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड इन दैट, राइट? ज्यादा कुछ मेहनत करने की तुम लोग को जरूरत नहीं है, राइट? ओके. रिमेंबर फ्यू थिंग्स व्हेन यू आर राइटिंग. यूज योर ओन लैंग्वेज, राइट? यूज योर ओन लैंग्वेज का मतलब है अगर तुम लोग को वो लाइन्स पता नहीं चले, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने कहा हार्ड वोकैबुलरी आएंगी, बिकॉज इट इज नाउ 12th की लेवल पे हो, तो थोड़ा हार्ड वोकैबुलरी आएगा ही आएगा, राइट? ठीक है. तो what you can do is you can, as I said, use synonymous words. जितना हो सके उतना synonymous words use करने की कोशिश करो, right? Make sure that idea is being produced over there. Arrange the ideas, events, arguments in a logical manner. Sequence में again, मैंने अभी एक सेकंड पहले बोला था, जो की आइडिया उसको लिंक जैसे लिंक करे ना, राइट? इट शुड बी रिलेटेड टू द प्रीवियस वन. लिंक लिंक लिंक, वो ऑर्डर में आना चाहिए. वो ऑर्डर एक लाइन में होना चाहिए एंड एक आइडिया में होना चाहिए. वो होना चाहिए कि ओके ये इसके बाद ये आता है, ठीक है? फिर मेक लीस्ट अमाउंट यूज ऑफ एग्जांपल्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच तो प्रोस राइटिंग में आते नहीं है, बट फिगरेटिव लैंग्वेज ना यूज करो. फिगरेटिव लैंग्वेजेस हम लोग है ना, बेकावे में आके वी स्टार्ट यूजिंग एडजेक्टिव्स, वी स्टार्ट यूजिंग, वो बोलते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. अवॉइड दैट, अवॉइड दैट, बिकॉज फिर क्या होगा कि उसमें फिर समझने में बहुत तकलीफ पड़ जाएगी. दे विल नॉट बी दैट मच ऑफ क्लैरिटी, ठीक है? तो जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन, राइट, की आइडिया जितना हो सके उतना उठा के जो लिमिट दिया हुआ है उस वो लिमिट में डालने की कोशिश करो. 50 तो मैक्सिमम 60 वर्ड्स है, राइट? 50 to 60 वर्ड्स होंगे. 6 नहीं तो 7 लाइन्स में हम लोग जा सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं, पर उससे कम भी नहीं, ठीक है? एंड मेक श्योर you're using the third person point of view. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई डायलॉग फॉर्म में दिया है तो हमें उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, राइट? हमें वो डायरेक्ट वाले स्पीच बिल्कुल यूज नहीं करना है, राइट? दे माइट कम पैसेजेस वेरिन जो बोलते हैं ना बायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल टाइप होंगे, राइट? तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें वो ना आई लगाना, ना मी लगाना, ना माई लगाना है. हमें वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाना है, ठीक है? ऑलराइट. फिर प्रेसी को पैराग्राफ में डिवाइड मत करना. प्रेसी इटसेल्फ इज अ स्मॉल पैराग्राफ. पैराग्राफ भी नहीं है, फ्यू लाइंस है. वो फ्यू लाइंस को भी इतने एक लाइन कहिए, एक लाइन कहिए, एक लाइन कहिए. मिनी माइक्रो नहीं चाहिए हमें, वन स्ट्रेट में चाहिए. प्लीज शू नॉट डू दैट, राइट? ऐसे करना चाहोगे ना तो बहुत पेचीदा हो जाएगा. दैट इज 1. 2, तुम लोग का वो जो तुम दिमाग में रख के लिखे होने के भाई मुझे इतना ही लिखना है, वो लंबा हो जाएगा. प्लीज अवॉइड मेकिंग इट इनटू पैराग्राफ्स, राइट? एंड अगेन द सेम पॉइंट, अपने कमेंट को अपने पास ही रखना. यहाँ तो प्लीज बिल्कुल मत डालना. ऐसे में जितना लिखना चाहो लिख लो, बट प्रेसी में बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे. ओके, वी आर क्लियर विद दिस? ये पता चल गया? हरी, उवेश, रेजा, आनंद, ठीक है? ऑलराइट, मूविंग ऑन. ठीक है. अब these are
10 steps, 10 required steps that you need to follow. Right. Read the given passage carefully at better understanding and put down the main theme and suitable title. Guys, for each and every piece of writing skill, title is very much required. Title के बिना तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. क्यों पता है? Because title will show the content that you're going to write. जो भी टाइटल तुम लोग डालोगे ना, राइट, वो टाइटल एक्चुअली जो कंटेंट दिया है, आई मीन जो तुम लोग लिखना चाहोगे उसका एक डिस्क्रिप्शन, मिनी डिस्क्रिप्शन होगा कि भाई हम लोग ये कंटेंट के बारे में लिख रहे हैं, राइट. इफ यू वांट यू कैन नोट, ये 10 स्टेप्स तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो. पहले सुन लेना, पहले सुन लो, राइट. रीड करना, पैसेज को अच्छे से रीड करना, फिर सोचना मैं इसके लिए टाइटल क्या दे सकता हूँ, राइट. एंड गाइस, वन मोर थिंग, टाइटल शुड बी लाइक विद इन 4 to 5 वर्ड्स. मुझे ये लंबा चौड़ा सेंटेंस बिल्कुल नहीं चाहिए. एंड क्वेश्चन तो बिल्कुल मत डालियो वहां पे, राइट. इट शुड बी लाइक विद इन द एक्सटेंट ऑफ मे बी 3 वर्ड्स से लेके 6 to 7 वर्ड्स. वर्ड्स होना चाहिए, नॉट अ सेंटेंस. टाइटल ऑलवेज हैज वर्ड्स इन इट एंड इट इज नॉट अ सेंटेंस. हमें वो सेंटेंस उठा के वहां लिखना ही लिखना है, राइट. एंड इट शुड रिफ्लेक्ट द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट. जो कंटेंट तुम लोग प्रेजेंट करने वाले हो वो रिफ्लेक्ट वहां टाइटल में हो जाना चाहिए. ओके, ठीक है. तो सेकंड पॉइंट क्या है? पैसेज को फिर से रीड करो. गाइस, एवरी टाइम आई एम गोना रिपीट दिस, ठीक है. जो भी प्रोज पीस दिया जाएगा या जो भी राइटिंग स्किल होगा एंड उसमें कुछ समझने के, जैसे कि एक ये है एंड एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, राइट, ठीक है. सो व्हाटएवर विल बी गिवन टू मिनिमम ट्वाइस यू विल हैव टू रीड. ट्वाइस, 2 बार तो रीड करना ही पड़ेगा. पहले बारी में फर्स्ट टाइम फॉर द रजिस्ट्रेशन इन योर माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है, सारा वोकैबुलरी रीड करते 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 वो रजिस्टर हो जाता है. सेकेंड, वो मीनिंग समझ में आना चाहिए, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, कि भाई ओके ये मीनिंग दिया गया एंड दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग. इसलिए बोल रहे हैं 2 बार, ठीक है. एंड अगेन दूसरी बारी में क्या होगा कि यू विल आल्सो अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज. ओके, इसका मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम ये है. सो कुछ भी छूट नहीं जाएगा, यू विल नॉट मिस एनीथिंग, ठीक है, right. And for your understanding sake what you can do is key phrases, key lines या कुछ भी हो ना, उसको हाईलाइट कर देना अपने प्रेसी की राइटिंग में. जो तुम प्रेसी बनाओगे ना 1/3 में, right, you can highlight. Don't worry, highlighting is allowed in both exams, right. कोई भी ब्लैक पेन, हाइलाइटर इस्तेमाल मत करना, right. ब्लैक पेन, only black, no red, no pink, कलरफुल नहीं बनाना है हमें, right. बोर्ड एग्जाम्स में you are allowed to use black and blue. ब्लू लिखने के लिए एंड ब्लैक हाईलाइटिंग के लिए. सो यू कैन हाईलाइट कि भाई ये मेरा मेन आइडिया है, ये मेरे कीवर्ड्स जो मैंने यूज किया है वो हाईलाइट करोगे ना, राइट, मच बेटर. क्यों? बिकॉज उसी पे नजर जाएंगे, राइट. तो तुरंत एग्जामिनर्स को पता चलेगा कि हाँ, दिस स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड व्हाट इज गिवन इन द पैसेज, ठीक है. दैट्स द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में क्या दिया है? सिलेक्ट एसेंशियल पॉइंट्स. व्हाट आई टोल्ड यू, एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है जो ऑलरेडी पैसेज के बारे में बता रहे हैं, पॉइंट कर रहे कि भाई दिस इज व्हाट इज देयर करके, राइट देम डाउन ब्रीफली, राइट, एंड रिजेक्ट, एलिमिनेट द रेस्ट. बाकी को छोड़ दो, राइट. एक बार तुम लोग वो की उठा लोगे ना तो बाकियों पे देखना ही नहीं है, टू अवॉइड कंफ्यूजन, राइट. बट व्हेन यू आर एक्चुअली पिकिंग अप दोस लाइंस अगेन, तुम्हें मीनिंग चेंज नहीं करना है. यू डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग ऑफ द होल passage, right. Prepare the first draft based on the underlined keywords. अब एग्जाम के टाइम पे हमें ड्राफ्टिंग करने के लिए टाइम नहीं होगा, बट व्हेन यू आर सिटिंग टू प्रैक्टिस एट होम, हमने प्रैक्टिस करने बैठे हैं ना, तो व्हाट वी कैन डू इज जो हमने उठाया है उसमें से देखो कि भाई इसमें से और कितना छोटा मैं कर सकता हूँ या हाउ प्रिसाइज आई कैन बी, ठीक है. वो फर्स्ट ड्राफ्ट बना. एक बार तुम लोग ने फर्स्ट ड्राफ्ट बना दिया, यू हैव ड्राफ्टेड द फर्स्ट प्रेसी, उसमें से देखो हाउ, लाइक उसमें से तुम लोग कितना और छोटा कर सकते हो. बिकॉज फर्स्ट ड्राफ्ट में ना 12 लाइन निकलेंगे तुम लोग की. नोट करना, एक बार तुम लोग जब करने बैठोगे ना तो तुम लोग को पता चलेगा 12 लाइन्स विल कम आउट. सेकंड ड्राफ्ट करने बैठोगे तो उसमें से 6 लाइन्स निकलेंगे एंड फाइनल ड्राफ्टिंग में यू गाइस विल अंडरस्टैंड ये मेन की पॉइंट्स है, उसमें से 3 या 4 ही लाइन निकलेंगे, राइट. ट्राई डूइंग दिस. जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम में वो ड्राफ्टिंग का वो सिस्टम नहीं आएगा. Immediately you'll be able to understand कि भाई मुझे ये सब लिखना है. Alright, so are we clear with this? ये इतना पता चल गया है. Do you want to note this down? Note down करना है? Note down I'll give you 2 minutes. चलो फटाफट नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना.
हो गया है तो वो thumbs up. Done. Uvesh, what about the rest? Reza done. Okay. Drashti, Dhruvi, give me a thumbs up when you finish. Okay, Anand is finished. Drashti is done. Dhruvi, what about you? Done. Okay. Uvesh, all right. ठीक है, मूविंग ऑन. डोंट वरी, इसके एग्जांपल्स में हम लोग वेरी सून लिखेंगे. ओके, रुक जाओ ना. जब तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब जो मैंने कहा ना ड्राफ्ट, तो एटलीस्ट 2 बार तो ड्राफ्ट बनेगा ही बनेगा. ड्राफ्ट का मतलब है दी रफ पीस, राइट, जिसमें से फाइनल पीस को हम उठा सकते हैं, राइट. कंपेयर करना, राइट. स्टार्ट कंपेयरिंग बोथ द ड्राफ्ट. वंस यू कंपेयर द ड्राफ्ट ना, तो तुम लोग को पता चलेगा ओके, तो इसमें से ये उठाना है, उसमें से ये उठाना है, राइट. बाकियों को एलिमिनेट करना है. वी कैन यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन हियर आल्सो. की आइडियाज को उठाओ, बाकी सबको एलिमिनेट कर दो. फिर व्हेन यू आर मेकिंग द फाइनल थिंग, लेंथ को चेक करना कि भाई कितना तक जा रहा है. अगर इट इज गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, जैसे कि मैंने कहा 50 to 60 वर्ड्स का लिमिट है हमारा, भले वो 5 मार्क का हो, बट 60 वर्ड्स में लिखना है. और 60 वर्ड्स का मतलब इट इज लाइक विद इन 6 to 7 लाइन्स, 7 लाइन्स के अंदर आ जाना चाहिए, राइट. इफ इट गोज बियॉन्ड इट, देख लेना कि भाई तुम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है कि नहीं, वो एक्स्ट्रा को हटा देना, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज प्रेसी हैज ऑलवेज टू बी विद इन लिमिट. इसे तो उसको कंसाइज में बोलते हैं, इसको कंडेंस्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो लिमिट में होते हैं, राइट. फिर फाइनल जब तुम लोग लिख लो, तब मेक श्योर यू आर एक्चुअली रिवाइजिंग इट. रीड कर लेना सारे वर्ड्स, यू हैव रिटन इट प्रॉपर्ली, grammatical structure is done properly, logical sequence is always there. ये 3 things are really very necessary. One, the vocabulary that you are using, spelling mistake नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना. 2, grammar, like tenses वगैरह हाँ लिखना, जो भी conceptual grammar हो वो structure में तुम लोग ने लिखा है. And 3, वो logically sequenced है, एक के बाद एक you have put down the ideas, right. Guys, please remember, right, for life it's a takeaway, grammar and logic will go hand in hand. ग्रामर एंड लॉजिक विल गो हैंड इन हैंड. ग्रामर के बिना लॉजिक नहीं होगा. लॉजिक का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, राइट. चाहे वो हमारे वो रिटन स्किल्स में हो, राइट, या स्पोकन स्किल्स में हो. दीज 2 थिंग्स विल गो हैंड इन हैंड. बिना सीक्वेंस के ग्रामर इज यूजलेस, राइट. एंड ग्रामर है, सॉरी सीक्वेंस है ना, ग्रामर नहीं है, वो भी है. तो बोथ आर एक्चुअली इंटरट्वाइंड विद ईच अदर. ओके, एक बार ये सब हो जाए तो फाइनल तुम लोग बना दो. अब write at the right corner in the bracket number of words used by you. Okay, एक बार तुम लोग खत्म कर दो, ठीक है, कि प्रेसी मेरा हो गया है. देख लो तुम लोगों ने कितने वर्ड्स में लिखा है. ओके, नाउ लेट मी टेल यू द फंडा ऑफ वर्ड्स. देखो ये वर्ड्स के व्हाई वी आर सेइंग नंबर ऑफ वर्ड्स, बिकॉज ही हम जब लिखना शुरू कर देते ना, राइट, आइडियाज स्टार्ट फ्लोइंग इन, राइट. हम लोग लिख रहे, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, वो sky is the limit. But here we have to limit our ideas, right. So इसे बोलते हैं कि limited, right, and it should be within the limit that is provided to you. अब यहाँ पे बोल रहे 60 words. अब if it is 60 words, right, guys सुन लेना, right, it all depends on you. अगर 60 words का limit दिया हुआ है, right, तो one line should have minimum 5 to 6 words. 5 to 6 words, maybe 7 words, depends के तुम लोग के हैंड राइटिंग कैसा है. बड़े बड़े हैंड राइटिंग है, बिग like this big, right, 4 to 5 words तो मैक्सिमम आपके एक लाइन में आ जाएगा. don't you know, like एक लाइन में वो कचरा करने की जरूरत नहीं है, राइट. जितना हो सके उतने वर्ड्स आने चाहिए, राइट. ओके, मुझे इतने वर्ड्स डालने हैं एक लाइन में करके, डोंट मेक अ खिचड़ी आउट ऑफ इट. देख लो भाई कितने वर्ड्स में, अपने अपने हिसाब से स्पेसिंग भी छोड़ना है. भाई मुझे 10 वर्ड लगाने हैं एक लाइन में करके, है ना, सारे ना घेटे बकरे की तरह लाइन नहीं लगाना है. It's going to be really very dirty when when you actually read it. Maximum there should be about 6 words in one line with the proper spacing and everything. ऐसे करके तुम लोग देखोगे ना, 6 words पर लाइन में होगा ना, तो आराम से with your ideas and everything can go up to 7 lines. 7 lines. ठीक है, I am telling you 7 lines. मेरे हैंड राइटिंग के हिसाब से mine is like this big, ये big. अब I don't know about you guys. रेजा का तो है ना, so है रेजा,
ये इतने इतने रेजर का तो आराम से 5 लाइन में आ जाए वैसा है. आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, राइट? ठीक है. सो इफ एंड व्हेन यू फिनिश द प्रेसी ना, राइट हैंड कॉर्नर में प्रेसी के बाद है ना, कॉर्नर में नंबर ऑफ वर्ड्स तुम लोग ने कितने लिखे, राइट? 25 वर्ड्स में है, 30 वर्ड्स में है, 15 वर्ड्स में है, कितने वर्ड्स में, वो एक बार गिन के वहां कॉर्नर में लिख देना. सो द पर्सन हु इज रीडिंग ना, द रीडर विल गेट एन आइडिया कि वो तुम लोगों ने इतने वर्ड्स में कंसाइज किया है. गेटिंग माई पॉइंट? आउट ऑफ द 60 कॉर्नर में लिखना है. वंस यू फिनिश, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया है. एंडिंग में in bracket say my press is containing like 45 words, 45 words, right? तो मैं वहां पे नंबर 45, नंबर स्पेलिंग नहीं लिखना है, नंबर 45 वो ब्रैकेट में लिख देंगे. सो यू विल आल्सो गेट एन आइडिया कि ओके मैंने 45 वर्ड्स में कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, ऑलराइट. राइट रफ ऑन टॉप ऑफ योर फर्स्ट, ये दिस पॉइंट इज नॉट रेलेवेंट. एग्जाम में हमें ये सब नहीं करना है गाइस. एग्जाम में हमें ड्राफ्टिंग करने की टाइम नहीं मिलेगी. दिस इज इफ एंड व्हेन यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग. ठीक है, ऑलराइट. आई विल टेल यू व्हिच पॉइंट्स टू राइट. एक है सेकंड पॉइंट वाला लिखना. स्टार्ट राइटिंग द पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू. चेक द लेंथ ऑफ द प्रेसी. सेकंड पॉइंट लिखना. थर्ड पॉइंट लिखना. Second, third, check the length of the presi. If it is more than required limit, note down that. Right? Read the revised draft once more. Give more attention to punctuation, grammar, and spelling. Write that. Write at the right hand corner in the bracket number of words used by you. ये तीन ही पॉइंट इसमें सभी लिखना है. Don't write the rest. Got it? Second point, third point, and the fifth point. Only these three you have to write. Others rest is not required. Once you finish writing, give me a thumbs up so I get to know. Okay, Dhruvi has finished. Thank you, Dhruvi. Great. Once you complete, just give me a thumbs up so that we can move on to examples. Ueshos has finished. Mehak, done? Okay. Drashti also completed. Done. Okay. All right. So, 1 second, hold on. I'll stop the share first. Coming back to the screen. Okay. All right. So, this much we understood about Prezi. Okay. So, what we are going to do is 1 second, hold on. 1 second. Huh? I need to stop the share first, then only I can move on. Okay. 1 second. 2 minutes. Okay. So प्रेसी का फंडा पता चल गया ना सबको, क्या क्या कैसे करना है करके. नाउ देयर शुड बी एनी फर्दर कंफ्यूजन्स नहीं होना चाहिए. कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन यू गाइस आर कंफ्यूज, ना तुम लोग सबसे पहले चीज में क्या कंफ्यूज होते हो पता है कि मैम